ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اولیو ہارورڈ اٹھ گیا۔ اس نے شاکی انداز میں کہا، تم کہاں غائب تھے علی؟ میں نے کہا، اس قبیلے پر جس کے ہم مہمان ہیں آج شام قزاقوں کے حملے کا خطرہ ہے۔ میں ان سے مقابلے کے انتظامات کر رہا تھا۔ اولیو ہارورڈ چونک پڑا، قزاق؟ یہ قزاق بیچ میں کہاں سے آ کودے؟ میں نے اسے مختصراً صحرائی قزاقوں کے بارے میں بتایا۔ اولیو ہارورڈ نے مضطربانہ انداز میں کہا، یہ تم کس چکر میں ہو علی؟ اپنے جھگڑے انہیں خود ہی نمٹانے دو۔ میں نے کہا، ہم ان کے مہمان ہیں اولیو ہارورڈ، اور پھر اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ وہ بولا، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی اور تم پوچھ رہے ہو کہ کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا، جب ہماری زندگیاں خطرے میں تھیں اور ہمیں یقینی موت کا سامنا تھا تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہم بچے۔ اب ہم انہیں مشکل میں چھوڑ کر نکل جائیں؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اولیو ہارورڈ نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، تمہاری بعض عادتیں بہت بری ہیں علی، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھتے۔ میں نے کہا، ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا ہے ڈیئر اولیو ہارورڈ، یہ تو نقطہ نظر کے فرق کی بات ہے۔ جسے میں اپنا کام سمجھتا ہوں تم اسے کچھ اور سمجھتے ہو۔ یاد رکھو، میں جو بھی کام کرتا ہوں اسے اپنا ذاتی کام سمجھ کر ہی کرتا ہوں، ورنہ اس کام میں ہاتھ ہی نہ ڈالتا۔ وہ بولا، تم نے یہاں سے نکلنے کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے یا بس قزاقوں سے الجھنے کے منصوبے بناتے رہے ہو؟ میں نے کہا، میں نے سردار سے بات کی ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ریگستان سے باہر نکلنے کا انتظام کر دے گا۔ اولیو ہارورڈ نے پوچھا، تو ہم یہاں سے کب روانہ ہوں گے؟ میں نے کہا، کل شام کو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اولیو ہارورڈ نے مضطربانہ لہجے میں کہا، کل شام کو کیوں؟ آج ہی کیوں نہیں؟ میں نے کہا، تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ایک دن انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم نقاہت محسوس کر رہے ہوگے اور فوری طور پر طویل سفر نہیں کر سکو گے۔ اولیو ہارورڈ نے طویل سانس لے کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں واقعی نقاہت محسوس کر رہا ہوں۔ مرجانہ نے پوچھا، تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، تم لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور یہاں سے جلد از جلد روانہ ہونے کو کہہ رہا ہے۔ سردار نے کہا، نہیں، اس کے لیے کم از کم ایک روز آرام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی توانائیاں پوری طرح بحال ہو جائیں اور وہ سفر کرنے کے قابل ہو جائے۔ میں نے کہا، میں نے اسے سمجھا دیا ہے سردار محترم، اور کل شام تک یہاں رکنے پر تیار بھی ہو گیا ہے۔ سردار نے کہا، اس سے کہو کہ چشمے پر جا کر نہا دھو لے تاکہ تازہ دم ہو جائے۔ میں نے اولیو ہارورڈ سے کہا، سردار کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو چشمے پر جا کر نہا لو۔ ہارورڈ بولا، ہاں، میں نہانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، مگر یہ سردار میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسے رہنے کے لیے ڈھنگ کا گھر تک میسر نہیں ہے اور صورت سے یہ انتہائی بیوقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں کے لوگ کس قسم کے ہوں گے جنہوں نے ایسے گاؤدی شخص کو اپنا سردار بنا لیا۔ میں نے کہا، یہ شخص تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر اسے رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ غاصب تو نہیں ہے؟ اس نے دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ تو نہیں کیا؟ دوسروں کا حق تو نہیں مارا؟ تم تو غاصب ہو، تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی، اور اگر تمہیں صورت سے یہ بیوقوف نظر آتا ہے تو میں تمہیں اس کے سوا کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کا علاج بھی کرواؤ۔ جسے تم گاؤدی کہہ رہے ہو وہ جانتا ہے کہ تم میک اپ میں ہو۔ اولیو ہارورڈ چونک پڑا، بولا، تم مذاق کر رہے ہو یا پھر تم ہی نے اسے یہ بات بتائی ہوگی؟ میں نے کہا، یہ شخص بہترین قیافہ شناس ہے، اس نے تمہارا سپاٹ چہرہ دیکھ کر ہی تمہارے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ میک اپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کاش تم میک اپ میں نہ ہوتے اور اس کی زبان بھی جانتے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ شخص کتنا پہنچا ہوا ہے۔ اولیو ہارورڈ نے کہا، یقین نہیں آتا، کیا اس نے تمہیں تمہارے بارے میں کچھ بتایا؟ میں نے کہا، یہ سمجھ لو کہ اس نے مجھے میرے نام کے سوا سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو آدمی کے باطن میں بآسانی جھانک سکتا ہے، اسے جھوٹ بولنا ممکن نہیں۔ ہارورڈ بولا، علم قیافہ کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ امریکی CIA میں ماہرین علم قیافہ کی بھرمار ہیں، مگر میں نے ان ماہرین کو اکثر دھوکے کھاتے دیکھا ہے۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ کسی ماہر علم قیافہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے کہا، میں نے اس سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی، اور جو جھوٹی داستان میں نے اسے سنانے کی کوشش کی تھی وہ قرین قیاس بھی تھی، مگر اس شخص نے میری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنے اصل فرار کی داستان سنائی اور اس نے بلا تعمل میری داستان سچ تسلیم کر لی۔ تم اسے کیا کہو گے؟ ہارورڈ بڑبڑایا، حیرت انگیز۔ تمہارے بارے میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے جھوٹ کو بڑے سے بڑا ماہر علم قیافہ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اگر اس شخص نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو حیران کن قرار دینا پڑے گا۔ کاش میں اس کی خدمات اپنے ملک کے لیے حاصل کر سکتا۔ میں نے تلخی سے کہا، ہر چیز کو برائے فروخت مت سمجھ لیا کرو، تم یہودیوں کی ذہنیت حد سے زیادہ تاجرانہ ہوتی ہے۔ سردار کھانا ختم کر کے اٹھ گیا۔ اس نے کہا، میں تو قیلولہ کرنے جا رہا ہوں علی، تم بھی کھانے کے بعد ذرا دیر کمر سیدھی کر لینا تاکہ قزاقوں کے مقابل آنے کے لیے تازہ دم ہو جاؤ۔ اگر اپنے دوست کے لیے یا اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مرجانہ سے کہہ دینا۔ سردار جھونپڑے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اولیو ہارورڈ نے پر اشتیاق لہجے میں کہا، کیا کہہ رہا تھا؟
मैंने खुश्क लहजे में कहा, कुछ भी नहीं कह रहा था। तुम्हें नहाना है तो चश्मे पर चले जाओ और अगर कपड़ों की जरूरत हो तो बता दो। हावर्ड बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैं जा रहा हूँ और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं इन लोगों का मजीद एहसान नहीं लेना चाहता। ऑलिव हावर्ड के जाने के बाद मर्जाना ने खाने के बर्तन समेटते हुए कहा, क्या अपने दोस्त से तुम्हारी कुछ नाराजगी चल रही है? मैं चौंक पड़ा, कहा नहीं तो, लेकिन तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ? वो बोली, तुम दोनों के अंदाज में एक दूसरे के लिए बहुत खिंचाव था। फिर तुम आपस में जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने हंसकर कहा, अरे वो कुछ नहीं है। जिस जबान में हम गुफ्तगू कर रहे थे वो जबान ही ऐसी है। कितनी ही मोहब्बत से गुफ्तगू करो, यूं लगता है जैसे आपस में लड़ रहे हो। मर्जाना हैरान होकर बोली, बड़ी अजीब जबान है। ऐसी जबान का भला क्या फायदा? आखिर हमारी जबान भी तो है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, अरबी जबान की क्या बात है? इतनी शीरीनी, इस कदर मिठास और नगमगी किसी और जबान में आ ही नहीं सकती। वो बोली, हम खुशकिस्मत हैं सैयदी के अरबी हमारी मादरी जबान है, वरना कोई गैर जबान सीखना बहुत मुश्किल होता है। मैंने चौंक कर कहा, मादरी जबान पर याद आया, तुम्हारी वालिदा नजर नहीं आती? क्या वो यहाँ नहीं है? मरजाना ने अफसुर्दगी से कहा, उनका इंतकाल हो चुका है। तवील अरसा हुआ, अब तो बस उनकी याद ही बाकी रह गई है। मैंने कहा, मुझे अफसोस है मैंने ये गम अंगेज तस्करा छेड़ा। बोली, माँ का तस्करा भी कभी गम अंगेज हो सकता है। मैं तुमसे अपनी माँ के बारे में बहुत सी बातें करती, लेकिन तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हम लोग तो कैलुला करने के आदी हैं। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम आराम करो। तुम्हारे आराम में कोई खलल अंदाजी नहीं करेगा। मरजाना खाने के बर्तन लेकर चली गई। मुझ पर थकन गालिब आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर लेट जाने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने जूते उतारे और बिस्तर पर ढेर हो गया। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तरफ से फिक्रमंद होता। एक पिस्तौल था जिसकी तरफ से मुझे फिक्र लाहक हो सकती थी। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। रेगज़ारे अरब के बीचों बीच वाक़े उस नखलिस्तानी बस्ती के बाशिंदों की तरफ से मुझे कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसी बस्ती में उस वक्त ऑलिव हावर्ड नामी यहूदी भी मौजूद था। ऑलिव हावर्ड गुज़श्ता कई दिनों से मेरे साथ था। उसकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं हुई थी जो मेरे खिलाफ होती। इसके बरक्स उसने हर तरह से मुझसे ताउन किया था, जिसका मतलब यही हो सकता था कि लकी हावर्ड की वापसी तक वो भेड़िया मेरे सामने यूं ही बकरी बना रहेगा। पिस्तौल हाथ में लिए हुए ऑलिव हावर्ड के बारे में मुख्तलिफ ज़ावियों से गौर करता रहा और आखिर चंद मिनट के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंच गया। कोई 15 मिनट के बाद जब मैं नीम गनूदगी की कैफियत में था, मैंने झोंपड़े में किसी के दाखिल होने की आहट सुनी। उस वक्त मैं करवट के बल लेटा था और झोंपड़े के दाखिली दरवाजे की तरफ मेरी पुश्त थी। मेरी गनूदगी काफूर हो गई, मगर मैं वैसे ही लेटा रहा। मैंने जूतों की आवाज से पहचान लिया था कि अंदर आने वाला ऑलिव हावर्ड है। अंदर दाखिल होने के बाद वो रुका। शायद उसने इधर उधर देखा होगा, मगर वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। सरदार और उसकी बेटी अंदरूनी हिस्से में थे। चंद लम्हे रुकने के बाद ऑलिव हावर्ड ने मध्यम आवाज में मुझे पुकारा, मगर मैंने जवाब देने की जहमत न की और दम साधे लेटा रहा। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर ऑलिव हावर्ड ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। उसका रुख मेरी ही तरफ था, मगर उसके चलने का अंदाज बड़ा मशकूक था। वो दबे कदमों चल रहा था ताकि कम से कम आहट पैदा हो। मैं साकित सामित लेटा रहा। देखना यह था कि वो अगला कदम क्या उठाता है और उसके अज़ाइम क्या हैं। बिस्तर के नजदीक आकर वो रुक गया। मैंने महसूस किया कि वो झुका है। पिस्तौल मैंने सरहाने की तरफ रख दिया था। ऑलिव हावर्ड ने अचानक ही पिस्तौल पर झपट्टा मारा और पीछे हटता चला गया। मैंने तेजी से करवट बदली और बिस्तर से उठने की कोशिश की। ऑलिव हावर्ड ने पिस्तौल मुझ पर तान लिया। बोला, चुपचाप पड़े रहो अली यार खान, वरना कभी उठना नसीब नहीं होगा। ऑलिव हावर्ड की उंगली पिस्तौल के ट्रिगर पर थी। मैंने उठने का इरादा मुलतवी कर दिया। ऑलिव हावर्ड ने फातिहाना अंदाज में कहा, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो अली। देख लो, तुम्हारी तमाम तर चालाकियों के बावजूद इस वक्त तुम्हारी जिंदगी मेरी एक उंगली के इशारे की मोहताज है। मैंने कहा, तुम मजाक कर रहे हो ऑलिव हावर्ड। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम वाकई मेरी जान के दरपे हो। मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के बाद तुम पिस्तौल मुझे वापस कर दोगे। वो बोला, अगर मैं मजाक कर रहा होता तो जरा बिस्तर से उठने की कोशिश करके देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं किस हद तक मजाक के मूड में हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि तुम्हें बैठे बिठाए ये अचानक क्या हो गया है। जब तुम यहाँ से नहाने गए थे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। तुम नहा कर आए हो और अभी तुम्हारे बाल भी नहीं सूखे। बोला, मेरा खून खौल रहा है अली। तुम्हारे हाथों में जिस बेबसी से गुजरा हूँ उसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी मासूम बेटी तुम्हारे कब्जे में थी, जिसके ख्याल से मैंने कहा वो तो अब भी मेरे कब्जे में है। उसकी रिहाई इस बात से मशरूत थी कि तुम मुझसे ताउन करोगे। अब इस वक्त तुमने ये हरकत करके खुद को नाअहल साबित कर दिया है और मैं भी इस बात का पाबंद नहीं रहा कि लकी हावर्ड को। वो बोला, बकवास बंद करो, तुमने मुझसे झूठ बोला था। मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो, मगर मामला मेरी बेटी का था, इसलिए मैंने खतरा मोल लेने से गुरेज किया। लेकिन अब वो सूरत नहीं रही। मैंने कहा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था ऑलिव हावर्ड।
इसलिए मैं समझ नहीं सका कि तुम्हारा इशारा कौन सी बात की तरफ है। वो बोला, तुमने मुझसे कहा था कि लकी हार्वर्ड को गोइटे हिल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। तुम्हारे इसी झूठ की वजह से मैं तुम्हारे हाथों में खिलौना बनकर रह गया, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैंने बेपरवाही से कहा, अगर तुम्हें यकीन हो ही गया है तो मैं भला क्या कर सकता हूँ। बोला, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो अली। लकी पहले भी जनरल टेरिस की कैद में थी और अब भी वही है। ये बात साबित हो चुकी है क्योंकि तुम मेरे साथ गोइटे हिल के लिए ही रवाना हुए थे। मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए फर्ज किए लेते हैं कि तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर ये तो बताओ कि इससे तुम क्या फायदा उठा सकते हो। मेरे ताउन के बगैर तो लकी रिहा नहीं होगी। ऑलिव हार्वर्ड ने मजे का लहजे में कहा, यह तुम्हारी खाम ख्याली है अली। मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें रास्ते से हटा देना ही इसराइल के मफाद में है। मैंने कहा, बेशक मेरा वजूद इसराइल और इसराइल नवाजों को कांटे की तरह खटकता है। मैं मानता हूँ कि मेरी मौत उनके लिए जिंदगी का पयाम लाएगी, मगर तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस नहीं मिल सकेगी। हार्वर्ड बोला, उसे जनरल टेरिस की कैद से रिहा कराना मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। फौजी एतबार से गोइटे हिल ज्यादा मजबूत नहीं है। मुझे यकीन है कि इसराइल की फौजी कुव्वत के सामने वो चंद ही घंटों में घुटने टेक देगा। मैंने कहा, तुम ये भूल रहे हो कि मेरी मदद के बगैर तुम इस बस्ती से भी नहीं निकल सकोगे। बस्ती वालों को जब ये मालूम होगा कि तुमने मुझे मार दिया है तो वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं, और फिर तुम उनकी जबान भी तो नहीं समझते। ऑलिव हार्वर्ड ने तहकीर आमेज नजरों से देखते हुए कहा, तुम ऑलिव हार्वर्ड को क्या समझते हो? मैंने हर चीज का तयन कर लिया है। मेरे पास पिस्तौल मौजूद है जिसके जोर पर मैं सरदार को यरगमाल बना लूंगा। बस्ती के लोग मेरी हर बात मानने के लिए मजबूर होंगे, और इशारों की जबान तो दुनिया में हर जगह समझी जाती है। मैं एक बार इस रेगिस्तान से निकल जाऊं तो सारे मसाइल चुटकी बजाते में हल हो जाएंगे। मैंने कहा, तो तुमने फैसला कर ही लिया है कि मुझे जान से मार दोगे? वो बोला, हाँ, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। मैंने कहा, तुमने मेरी गफलत से फायदा उठाया है ऑलिव हार्वर्ड, और ये कोई अच्छी बात नहीं। वो बोला, तुम मेरे हरीफ हो अली, और अच्छी तरह जानते हो कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। मैंने कहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं ऑलिव हार्वर्ड। क्या तुम बता सकते हो कि इसके बावजूद मुझसे पिस्तौल की तरफ से गाफिल होने की हिमाकत क्यों कर सरजद हो गई? वो बोला, ये कोई इतनी हैरत अंगेज बात नहीं है। तुम जरूरत से ज्यादा खुश फहमी का शिकार हो गए थे। मैंने अपनी बेटी की खातिर अपने मुल्क के खिलाफ जो कुछ किया है उस पर मेरा ज़मीर मुझे हमेशा मलामत करता रहेगा, लेकिन तुम्हें जान से मार कर मैं जो कारनामा सर अंजाम दूंगा वो मेरे दामन का हर दाग धो डालेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ अली, मैं अपनी कोताहियों का कफारा अदा करने जा रहा हूँ। पिस्तौल के ट्रिगर पर ऑलिव हार्वर्ड की उंगली का दबाव बढ़ गया। मैंने तेजी से कहा, एक मिनट ठहरो ऑलिव हार्वर्ड। आज सुबह का वो वक्त याद करो जब तुम बेहोश होकर गिर गए थे। मैं आध मील तक सहरा की तपती धूप में तुम्हें अपने कांधे पर डालकर लाया था। अगर मैंने ये न किया होता तो तुम इस वक्त मर चुके होते। क्या तुम मुझे इस एहसान का यही सिला दोगे? एहसान फरामोशी तो मत करो ऑलिव हार्वर्ड। वो बोला, इस एहसान के बदले मैं तुम्हें कोई तकलीफ दिए बगैर मारूंगा, वरना मेरा इरादा था कि तुम्हें सिसका सिसका कर खत्म करूंगा। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि पहली गोली तुम्हारी खोपड़ी में और दूसरी दिल में उतारूंगा। तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म के साथ छोड़ देगी। ऑलिव हार्वर्ड के सर्द लहजे से मेरे जिस्म में खौफ की एक फुरेरी सी दौड़ गई। मुझे यकीन हो गया कि वो अपने इरादे पर जरूर अमल करेगा। मैंने मुस्तरबाना लहजे में कहा, मेरी बात सुनो ऑलिव हार्वर्ड, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता सकता हूँ जिसके बाद तुम मुझ पर गोली चलाने के इरादे से बाज आ जाओगे। मेरी बात सुनकर ऑलिव हार्वर्ड के होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने मुंह से कोई लफ्ज अदा किए बगैर पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया, जिसकी स्याह नाल का रुख मेरे सर की जानिब था। ऑलिव हार्वर्ड की बौखलाहट देखने से ताल्लुक रखती थी। पिस्तौल का ट्रिगर दबाने के बावजूद ना तो पिस्तौल से कोई गोली निकली और ना ही कोई धमाका हुआ। ऑलिव हार्वर्ड ने बौखलाहट में कई बार ट्रिगर दबाया, मगर हर बार एक ही नतीजा बरामद हुआ। पिस्तौल किसी सूरत गोली उगलने के लिए तैयार नहीं था। मैंने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए मुतासिफाना लहजे में कहा, नहीं चला ना, तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता सकता हूँ जिससे सुनने के बाद तुम मुझ पर गोली चलाने के इरादे से बाज आ जाओगे और पिस्तौल मुझे वापस कर दोगे। ऑलिव हार्वर्ड ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जो मुझे पिस्तौल चलाने से बाज रख सके। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात थी और वो बात अब तुम्हारे इल्म में आ चुकी है, सुनोगे? वो बात ये थी कि पिस्तौल खाली है। हार्वर्ड ने हकलाते हुए कहा, क्या मतलब? क्या तुमने पिस्तौल खाली करके? मैंने कहा, हाँ ऑलिव हार्वर्ड, मैंने जानबूझकर पिस्तौल को नुमाया जगह पर रखा था और पिस्तौल में से गोलियां निकाल ली थी। मैंने तुमसे पूछा था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, फिर मुझसे ये हिमाकत क्यों सरजद हुई? इस सवाल से दरअसल मैं तुम्हें होशियार करना चाहता था। मकसद ये था कि तुम्हें मुझ जैसे मोहताद आदमी से किसी हिमाकत की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, मगर तुम नशे के एहसास में इस कदर चूर थे कि तुमने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी।
जानते हो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि मैं तो तुमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर तुम अब भी पूरी तरह मुझे समझने में नाकाम हो। मैं समझ गया था कि तुम मौका मिलते ही मेरा पत्ता साफ करने की कोशिश करोगे। अपने इस ख्याल को यकीन की सरहदों तक पहुंचाने के लिए मैंने खाली पिस्तौल का चारा डाला और तुम बिल्कुल किसी बेमगज मछली की तरह चारे पर मुंह मार कर कांटे में फंस गए। हावर्ड ने अटक अटक कर कहा, तो अब तुम मेरे साथ क्या क्या सुलूक करोगे? मैंने कहा, जो एहसान मैंने तुम्हारे साथ किया है ऑलिव हावर्ड, अगर वो किसी कुत्ते के साथ कर देता तो वो तमाम जिंदगी मेरा गुलाम होकर रह जाता। तुमने अपने आप को एक कुत्ते से भी बदतर साबित कर दिया है। तुम मुस्तकिल तौर पर मेरे चुंगल में रहे हो। मैं जब चाहता तुम्हारी जिंदगी ले सकता था, मगर मैंने महज अपना वादा पूरा करने की खातिर 1000 जतन किए। हालांकि मैं इसके लिए मजबूर नहीं था, और तुमने उसके इवज मेरे साथ क्या सलूक किया? तुमने चंद लम्हे भी जाया नहीं किए। पिस्तौल का ट्रिगर दबाकर अपनी जानिब से तो तुमने मेरा सफाया कर ही दिया था। अगर खुदा न खास्ता मुझसे चूक हो गई होती और मैंने पिस्तौल से मैगजीन न निकाल लिया होता तो इस वक्त आलम बाला में होता। अब होना तो ये चाहिए कि मैं तुम्हें ठिकाने लगाकर अपना रास्ता लूं। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि इसे यूं बर्बाद करता फिरूं। मुझे अपने बहुत से मामलात देखने हैं। तहजीब मैल्कम एक्स को तलाश करना है, जिसकी मुझसे जुदाई के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है ऑलिव हावर्ड, लेकिन मैं पहले अपना वादा पूरा करूंगा। लकी हावर्ड को तुम्हारे हवाले करके तुम्हें जाने का मौका दूंगा। उसके बाद जब कभी तुम मेरे सामने आओगे तब देखूंगा कि तुम कितने पानी में हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।